سامعین کرام السلام علیکم. میں سید قمر عباس نوید آج الحجت فاؤنڈیشن کے جانب سے نظاماتی پیش کر رہا ہوں. ہمارا ڈسکشن ایک بہت اہم ٹاپک پر ہے جو ہے تربیت اولاد. چونکہ نیک اولاد کسی بھی انسان کے لیے بیش بہا قیمتی سرمایہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے گراں قدر عطیہ ہوتا ہے. اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں اپنے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے صحیح نگہداشت اور پرورش کا سوچتے ہیں، وہی ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کی درست خطوط پر تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں. کیونکہ اگر آج ان پیارے اور لاڈلے بچوں کو پاکیزہ اخلاق اور نیک خصال سے آراستہ کر دیا جائے گا تو یقیناً آج کی یہ معصوم کریہ مستقبل میں گلستان حیات کی خوبصورتی اور اس کی رونق کو دوبالا کرنے کی باعث ہوگی. آج ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ مشہور اور معروف شخصیت علامہ طاہر ہر دل عزیز ذاکر و خاطب اہل بیت مہمان محترم علی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دائم اور قائم رکھے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں الحجت فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور تمام بنگلہ دیش کے مومن مومنات جتنے بھی ہیں ان سب کے جانب سے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو مولانا صاحب آج ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے تربیت اولاد انشاءاللہ. تو ہمارے جو اسلام کی نگاہ سے، ہمارے اہل بیت کی نگاہ سے ہم تربیت اولاد کیسے کریں، اور اس چیز پہ تھوڑا فوکس آپ ایک لیکچر تھوڑا سا کر دیں مولانا صاحب. اوکے. یہ اذان ہو جانے دو. جی جی. یہ بولو کتنی دیر بولنا ہے؟ آپ 25-30 منٹ تک جو ہے آپ ایک لیکچر دے دیں اس کے اوپر، پھر ہم لوگ لائیو کوشچن آنسر جو ہے وہ لینا شروع کر دیں. آپ کی اردو اتنی اچھی کیسا ہے یار بنگلہ دیش میں رہ کے؟ ہم لوگ کے یہاں پہ جو ہے ہم لوگ اردو پہ بھی عزاداری کرتے ہیں، بنگلہ میں بھی عزاداری کرتے ہیں، تو بچپن سے اسی وجہ سے. اور آپ پہلے ہمارے سرزمین ڈھاکہ بنگلہ دیش میں آئے ہوئے ہیں. حسینی دالان میں پڑھ چکا میں. جی جی جی. ہم لوگ جو ہے وہی پہ عزاداری کرتے ہیں، ڈھاکہ کے حسینی دالان امام باڑہ ہمارے. آج کل کیا حالات ہے، مجلسیں ہو رہے ہیں آپ کے پاس؟ یہاں پہ ابھی تو فی الحال لائیو مجلس ہی ہو رہی ہے. امام باڑہ تو ابھی لاک ڈاؤن ہے، جو ہے 4 بجے تک جو ہے دالان جو حسینی دالان کھلا رہتا ہے زیارت کے لیے. مجلس ابھی فی الحال نہیں کر پا رہے. انشاءاللہ محرم کا کیا ہے پروگرام؟ محرم تو جو ہے قبلہ وہ ابھی دیکھتے ہیں، مطلب گورنمنٹ آف بنگلہ دیش کیا ڈیسیشن لیتے ہیں اس کے حساب سے پھر یہاں پہ جو ہے. ڈھاکہ میں کتنے شیعہ ہے؟ ڈھاکہ میں قبلہ اپروکسیمیٹلی شیعہ جو ہے more than 20,000 approximately. I'm not sure about it, but approximately. ماشاءاللہ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں جاب کر رہا ہوں. پہلے دبئی میں تھا، ابھی فی الحال لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہیں پہ ہوں. تو انشاءاللہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ. آپ کی طبیعت صحیح ہے مولانا صاحب؟ شکر ہے اللہ کا. بیک ٹو بیک مجلسیں چل رہے ہیں، یہ میری 3rd ہے. جی اب اس کے ماشاء بعد پھر اللہ 4th. ماشاء اللہ. خدا آپ کو صحت و سلامتی دے، طول عمر عطا بس فرمائے. مولا کا یہ کرم. ہم مولا کو سلام. کتنے ویورز ہیں آپ کے؟ ابھی تقریباً 22 ویورز ہیں.
فی الحال دیکھ رہے ہیں. اور الحجت فاؤنڈیشن کے پیج پہ لائیو یہ ٹیلی کاسٹ آلریڈی ہو رہا ہے, تو بہت ہمارے بنگلہ دیشی ہے, باقی بہت سارے اور لوگ جو ویورس ہیں سب دیکھ رہے ہیں. بس میں پھر سے دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا بزی اسکیڈول میں وقت نکالا. تھینک یو. بس یہ سعادت ہے اللہ کا. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صلوات پڑھیں محمد وعلی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. عزیزان محترم، آج بنگلہ دیش الحجت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ لائیو میرا پروگرام، میں انڈیا میں ہوں اور آپ ڈھاکہ میں اور دنیا سن رہی مجھے. اس میں جو آج کی ٹاپک ہے جو مجھے دی گئی ہے وہ تربیت اولاد ہے کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس. یہ سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اسلام اس پہ سب سے زیادہ اسٹریس کرتا ہے. افسوس کہ ٹائم نہیں ہے، مجھے 30 منٹ دیے گئے، مجھے 1 گھنٹے کے اندر پروگرام پورا ختم کرنا ہے. اس پہ تو میرے پورے اشرے ہیں ہاؤ ٹو ریز کڈس. میرے مین ٹاپک سے ہی منڈے پھر ایک اسپیچ دوں گا انشاءاللہ. ایک لیکچر ہے میرا منڈے کے دن انشاءاللہ کے. تو بہرحال میں نے اپنی تقریر کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت سے کیا کہ جس میں اللہ ڈائریکٹ امام علی کے شیعوں کو ایڈریس کر، ہم سے ڈائریکٹ ایڈریس. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہ اے ایمان والو، اے علی کا کلمہ پڑھنے والو، اے شیعہ حیدر کرار، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ، اس فائر سے بچاؤ کہ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. تو ڈائریکٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تم علی والے ہو، تم یہ بول رہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا، میں تو روزہ رکھ رہا، میرے گھر میں تو عبادت ہو رہی ہے، میں تو کر رہا، میری اولاد بھی کرے گی، یہ غلط ہے. اسلام یہ بولتا کہ اگر تم کر رہے تو تمہاری ذمہ داری ہے، ماں کی ریسپانسبلٹی ہے، باپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اولاد کو برابر ریس کرے. اس لیے کہ اولاد جو ہے امانت ہے، اولاد ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس. اگر اولاد دیندار نکلے تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر بیٹا یا بیٹی، کوئی ایک بیٹا یا ایک بیٹی دیندار ہو جائے، دین کی خدمت کرے، تو وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے بخشوا دے گی. انہیں آپ کا وجہ بنیں گے، ریزن بنیں گی آپ کی بخشش کا، آپ کی اولاد. اور اگر اولاد بگڑ جائے تو پھر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں، کوئی آپ کی لحد پہ آنے والا بھی نہیں. اس لیے حکم ہے کہ اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آؤ، مسجد میں بھی لے کر آؤ، امام بارگاہ میں بھی لے کے جاؤ، سیمیٹریز میں بھی لے کے جاؤ، جا کے بتاؤ کہ بیٹا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں I'm going to stay over here، یہ میری گریو یارڈ ہے، یہاں پہ مجھے رہنا ہے. اور صرف بولا نہیں بلکہ معصومین نے اس پہ عمل کر کے بتایا. شہزادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور شہزادی زینب، اولاد کی تربیت میں سب سے بڑی ذمہ داری عورت کی ہے، سب سے بڑی ریسپانسبلٹی خاتون کی ہے، بیوی کی ہے، وائف کی ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ عورت کی ذمہ داری کیا، ریسپانسبلٹی کیا ہے. میں کافی عرصے کے بعد بنگلہ دیش والوں کے لیے مدرس پڑھ رہا. 30 منٹس میری مدرس ہوگی، 30 منٹس میں ختم کروں گا. تو ایک آج اسکیچ کھینچنا ہے خالی مجھے. تربیت اولاد پہ تو ڈسکشن پورا نہیں ہو سکتا.
इसलिए एक स्केच खींचूंगा कि जिम्मेदारी किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर औलाद नेक निकले तो कितना फायदा है। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, 1-2 वाकयात बताऊंगा। तो मैं क्या करूं, वक्त की तेजी, मैं तेजी के साथ पढ़ रहा कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि औरत की जिम्मेदारी क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वुमन क्या है। शादी करके वो अपने ससुराल आती है, अपने शौहर के घर आती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, मियाँ बीवी में कोई इश्यूज नहीं चाहता, मैं जनरल मैसेज कर रहा, जनरल में बात कर रहा जो शरीयत बोल रही। जब आए तो अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूलुल्लाह औरत की जिम्मेदारी क्या खाना बनाना, रोटी बनाना औरत की जिम्मेदारी है। आपके पास चावल बनते हैं, क्या चावल बनाना औरत की जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। क्या घर में सफाई करना औरत की जिम्मेदारी है, कहा नहीं। क्या बेडिंग्स को, अपने बेडरूम को साफ करना, मिसाल दे रहा बेडरूम को साफ करना, कहा नहीं। कब ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, तो करे क्या फिर। खाना नहीं बनाए, पानी नहीं बनाए, चाय नहीं बनाए, औरत करे क्या। तो अल्लाह के रसूल ने कहा औरत की जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत है, कि तुम तरबियत का देना वो सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि औरत कैसे बच्चे को रेस करे। अगर तुम उस अंदाज से दीनदार रेस करोगे तो तुम्हारी आखिरत सही होगी। अगर इसलिए कि रोज़े मैशर वही औलाद, वही बेटा, वही बेटी कि जिसको हमने हराम खिलाया, जिसके साथ हमने सारी चीजें की, ये जब तुम्हारा नजात मिल जाएगी और तुम जाओगे तो यही बेटा, यही बेटी तुम्हारा दामन पकड़ लेगी डे ऑफ जजमेंट में माँ का, बाप का दामन पकड़ के बोलेगी कि परवरदिगार, अगर आज हम जहन्नम में जा रहे हैं तो व्हाई वी आर गोइंग, ये इनकी वजह से। तो उस वक्त माँ तड़प के बोलेगी, बाप तड़प के बोलेगा कि माँ बोलेगी कि मैं भूखी रही, मेरे बेटे को खिलाई, मैंने पुराना लिबास पहना और इसको नया लिबास पहनाया, मैंने हर वो इसकी ख्वाहिश पूरा की, पूछो क्या मैंने नहीं किया। तो उस वक्त औलाद बोलेगी कि मैं परवरदिगार, ये जो मेरी माँ बोल रही है बिल्कुल सही, लेकिन इससे पूछो कि इसने इस्लाम बताया, दीन बताया, हलाल हराम बताए। ये माँ की जिम्मेदारी है कि तुम बच्चे को रेस का, हर माँ ये चाहती कि बेहतरीन स्कूल में जाए, जरूर पढ़ाओ, इसलिए कि जितना एजुकेशन होगा उतना इमाम अली समझ में आएंगे। जहालत में अली समझ में नहीं आते, अली इल्म से समझ में आता। बेहतरीन, मैं बोल रहा बांग्लादेश में आप लोग जो है बेहतरीन तालीम दो, मिशनरी स्कूल से बनाओ। इफ यू कैन अफोर्ड व्हाई नॉट। अच्छा तरबियत दो, अच्छा ब्रॉटअप करो, अच्छा रेस करो, अच्छे स्कूल में भेजो, लेकिन इस्लाम के फ्रेम के अंदर। इस्लाम का फ्रेम होगा, दीन होगा, इस्लाम होगा, तो यही बच्चा तुमको आगे चल के तुम्हारी मदद करेगा। मैं लंदन का एक वाकया सुनाता, मेरे साथ हुआ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके 4 बेटे थे। एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, एक हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए, एक कैम्ब्रिज का था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में 4 लड़के, बेहतरीन तालीम दी। जब वो जिंदा थे, बाप के साथ जब चलते थे, प्राउड फील करता था बाप। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हाई पोस्ट पे थे, प्रोफेशनल लड़के थे। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारा बच्चे, हमारा यूथ तक जाके पढ़ना। मैं तो पूरी दुनिया में ये बात बोलता हूं कि गो एंड गेट गुड एजुकेशन। जितना एजुकेशन आएगा उतना इमाम अली समझ में आएगा। जहालतों में रहोगे तो खत्म हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। मौला अली का जुमला याद रखो, मौला अली का जुमला गले में तावीज बना लो। बांग्लादेश के यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की दोनों को बोल रहा। लड़कियों को भी अच्छा पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए लड़कियों को अच्छा? इसलिए कि वो एक लड़की नहीं है, उसके पीछे पूरा जनरेशन है, उसके पीछे पूरा नस्ल है। जितना वो पढ़ेंगे उतना बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, बेहतरीन एजुकेशन दो। इमाम अली कहते हैं, मौला का जुमला याद रखो, इमाम अली कहते हैं कि इल्म को लेना है, नॉलेज को लेना है। अगर वो इल्म किसी मुनाफिक के पास है तो जाओ और ले लो, इसलिए कि ये तुम्हारी खोई हुई मीरास है जो चली। हर मासूम ने एजुकेशन पे जोर दिया। मेरी टॉपिक एजुकेशन नहीं है, मेरी टॉपिक तरबियत औलाद। तो 4 बड़े बेटे, बाप का इंतकाल हुआ लंदन में, तदफीन में थे। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा, बाप की लहर पे 7 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ो, तुम्हारे बाप को बहुत फायदा होगा। बेटों ने कहा मौलाना आप पढ़े, हमको पढ़ना नहीं आता। आप इमेजिन करो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद दुनियावी तालीम में यहां तक चले गए, लेकिन बाप ने बेटे को यह नहीं बताया कि बेटा इन्ना अंज़लना भी कोई सूरा है कुरान का। मैं ये बोलना चाहूँ, एजुकेशन के साथ इस्लाम लेकर आओ, बैलेंस लेके चलो।
इसकी तरबियत और कब से रेस करना। मौला अली से पूछा गया, प्लीज गौर से सुनो, प्लीज गौर से सुनो, मौला अली से पूछा गया कि मौला औलाद की तरबियत कब शुरू करना चाहिए? जब बच्चा 4 साल का हो जाए, जब हम सोचे। इमाम अली ने कहा नहीं। रावी ने कहा मौला जब बच्चा 2 साल का हो जाए, जब हम तरबियत के लिए बारे में बात करें। अली ने कहा नहीं। रावी ने कहा मौला फिर जब बच्चा पैदा हो, जब हमको फिक्र करें हम कि आज तरबियत क्या हम कैसा करें। इमाम अली ने कहा नहीं। रावी घबरा गया, कहा मौला जब प्रेगनेंसी में हो जाए या पेट में बच्चा आ जाए, जब हम सोचना प्लान करना कि औलाद की तरबियत कैसा करना। अली ने कहा नहीं। Then he said मौला then when? इंग्लिश में नहीं बोला, ये तो मैं बोल रहा। प्रेगनेंसी जब शुरू हुई उस वक्त भी अली कहते नो। रावी ने, प्लीज गौर से सुनो, रावी ने कहा मौला औलाद की तरबियत की फिक्र सोच कब होना? 4 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, बच्चा जब मां के शिकम में आए उस वक्त नहीं, जब पैदा हो उस वक्त नहीं, तो फिर कब? मौला अली ने कहा कि जब तुम अपनी शादी के लिए प्रपोजल भेजो उस वक्त चेक करो कि उसके पास दीन है, मां के पास, लड़की के पास। क्या मैसेज दिया, क्राइटेरिया क्या बताया कि दीनदार लड़की से शादी करो। रावी ने पूछा किस लड़की से शादी करना। इमाम अली ने कहा कि 2 चीजों को कभी नहीं देखना लड़की में, 2 चीजों को कभी नहीं देखना, और 2 चीजों को देखना हमेशा। पूछा क्या, तो कहा लड़की का हुस्न नहीं देखना, ब्यूटी, और पैसा नहीं देखना। रवि तो घबरा गया, इसलिए कि मर्द का एक नेचर है। मर्द का नेचर क्या है? खुद अपने आप को नहीं देखता, काला पीला जैसा भी है, बीवी खूबसूरत। अगर कोई खूबसूरत बीवी से शादी करा तो बुरी बात नहीं, लेकिन मौला क्या बता रहे कि ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन नहीं रखना कि बीवी लड़की खूबसूरत और पैसेदार हो। पूछा क्यों, रीजन क्या है? मौला ने कहा ये दोनों चीजें फना होने वाली। आज हुस्न है, कल हुस्न नहीं रहेगा। आज ब्यूटी है, कल ब्यूटी नहीं रहेगी। पूछा फिर लड़की को शादी के वक्त देखना गया, तो कहा उसका तकवा देखो, नस्ली तहरत देखो। तकवा होगा, पायस होगी, जो औलाद होगी वो नेक होगी, वो भी पायस होगी, वो तरबियत अच्छी देगी। वेरी क्लियर। मैं एक एक मौला का मैसेज, मेरी पूरी एक एक मजलिस है, मैं तेजी से आगे बढ़ा, खाली हेडलाइंस देके आगे बढ़ा आपको, वक्त की कमी की वजह से। उसके बाद औलाद की तरबियत शुरू कब करें? पहला स्टेप क्या है? जब आप शादी करें तो किस घर में कर रहे हैं शादी। इवन अगर आप बड़े स्कूल्स में जाओ, बड़े जो मिशनरी स्कूल्स है, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे इंटरव्यू लेते हैं माँ बाप का। पहले माँ बाप अगर जाहिल है तो क्या अपने उनके बच्चे को लेंगे बड़े स्कूल में? कभी नहीं लेते, मिशनरी स्कूल्स में नहीं लेते। पहले माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं कि हाउ दे आर दे एजुकेटेड। तो अगर माँ बाप एजुकेटेड नहीं है तो बच्चे को क्या एजुकेशन देंगे? वो लोग नहीं देते एडमिशन। तो एग्जैक्टली इस्लाम भी यही बोल रहा कि पहले तुम पहली उस लड़की को चेक करो कि जिस घर में तुम शादी कर रहे। आज आप इंसाफ से बोलो हमारे पास एक क्राइटेरिया है, हम ये चेक करते, वी डोंट चेक। हमको अच्छी खूबसूरत लड़की है शादी करना है, पैसे वाली है शादी, हम क्या शादी से पहले चेक करते कि उसके पास दीन है, उनके घर में इस्लाम है, वो पर्दा करती है, हिजाब करती है, इस्लाम के उसूल पे अमल करती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मौलानी से करो, मैं ये नहीं बोल रहा, कम से कम जो वाजिबात है उस पर वो अमल करती है। अगर वाजिबात पे अमल करती है तो यू कैन डू इट। ये जिम्मेदारी किसकी है? उस माँ की जिम्मेदारी है कि जिसने अपनी बच्ची को रेस किया, जिसने अपने बच्ची को रेस किया। दोस्तों मैं यूं ही नहीं कह रहा, हमारे पास नस है मासूम की, नस है मासूम की। अब मैं करबला शब आशूर, मसाद पे नहीं आया मैं, करबला शब आशूर, मौला हुसैन एक एक के खैमे में जा रहे, बीबी रबाब के खैमे में गए, देखा शहजादी अली असगर के झूले पे मां सर रख के रो रही। जनाबे उम्मे फरवा के खैमे में गए, शहजादे कासिम को सामने बिठा के मां तक दूसरे दिन के लिए तैयारी कर रही। जनाबे लैला के खैमे में गए, देखा कि जनाब अली अकबर मां के जानू पर है, और मां ये तड़प के कह रही कि मेरे लाल कल ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। इस सब के बाद जब मौला हुसैन शहजादी ज़ैनब के खैमे में, गौर से सुन, बीबी ज़ैनब के खैमे में, तो क्या देखा?
शहजादी के खैमे में देखा कि ओनो मोहम्मद सामने बैठे हुए और बीबी ज़ैनब मौला अली अलैहिस्सलाम की और जनाब जाफर तैयार अलैहिस्सलाम की जंग के वाक़यात सुना रहे कि बेटा तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा जाफर तैयार ऐसे जंग लड़ते थे, तुम्हारे नाना इमाम अली ऐसे इस्लाम के लिए लड़ते। क्यों बता रही बीबी? दूसरे दिन के लिए मोटिवेट कर रही बीबी, तैयार कर रही इस्लाम के लिए। मेरा सवाल यहाँ पे ये, क्या जनाबे ओनो मोहम्मद नॉर्मल बच्चे थे? क्या उनको नहीं मालूम था? 100% मालूम था बीबी ज़ैनब के बच्चे। और बीबी ज़ैनब के बच्चे ये वो बच्चे कि जिन्होंने आंख खोली तो मौला अली की आगोश में आंख, हसन और हुसैन की आंखों में हाथों में पले, जो हसन और हुसैन के हाथों में पले बच्चे, जो अली के आगोश में आंखें खोली, जो बीबी ज़ैनब जैसी पर्सनालिटी, शहजादी उम्मे कुलसूम जैसे खाला की परवरिश में रहे। क्या उन बच्चों को जरूरत है इस्लाम बताने की? तो बीबी ज़ैनब ने शब आशूर बच्चों को तैयार किया नहीं, बल्कि कनीजों को कयामत तक, ज़ुहूर इमाम तक ये मैसेज दिया कि मेरे ओनो मोहम्मद जैसे बच्चे, उन बच्चों को भी मुझे तैयार कर रहा हूं। एक लम्हे के लिए मैं गफलत में नहीं हूं कि तुम अपनी औलाद से कैसे गफलत हो। हम बैठ के बात करते हैं, क्या माए 5 मिनट बात करते हैं? मेरी ख्वाहिश है आपसे, मैं जब इस टॉपिक पे ढाका बांग्लादेश में अल हुज्जत फाउंडेशन के उसमें पढ़, जो भी मुझे सुन रहा या बाद में मुझे सुने, मैं रिक्वेस्ट कर रहा उन पेरेंट्स से, उन माओ से, sit with your kids for 10 minutes every day. Sit with your kids for 10 minutes. 10 मिनट बैठ, talk to them. दूसरी मिसाल दूं, शहजादी कौनैन, मादर हसनैन, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। एक सलावत पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। बीबी फातिमा के 2 बेटे हसन और हुसैन। शहजादा मोहसिन तो शहीद हो, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों इमाम हैं। ये हमारा अकीदा, ये हमारा बिलीव कि इमाम दुनिया में आके परवरिश नहीं पाता, दुनिया में आके तरबियत नहीं लेता, वो पैदा इमाम होता है। उनको तरबियत, इमाम को तरबियत की जरूरत नहीं होती। उसके बावजूद शहजादी कौनैन की जिंदगी का मशहूर वाक़या, रोज मौला हसन मस्जिद में जाते थे नमाज फजर को नाना के पास, और जो कुछ अल्लाह के रसूल का ये तरीका था कि जब जाते थे तो उस वक्त अल्लाह का रसूल नमाज के बाद दर्स देता था। तो मौला हसन पहले आ जाते घर को दर्स के बाद, आके माँ को एक एक चीज बताते। क्यों बताते? मैं पूछ रहा, क्यों बताते? बीबी ज़हरा खुद सुन रही। अब बीबी ज़हरा कोई मामूली चीज है, राज इलाही का नाम है। बीबी ज़हरा का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुल रहा, बीबी ज़हरा सामने देख रही बाबा क्या बोल रहे। उस जमाने में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं थी, बहुत छोटी सी मस्जिद थी। अंदर मस्जिद में क्या हो रहा सारी बीबी शहजादी देख रही। लेकिन उसके बावजूद जब हसन आते थे तो बीबी पूछती थी कि बेटा बताओ आज नाना ने क्या कहा, आज नाना ने क्या मसला बताया। मौला हसन एक एक चीज माँ को बताते। एक दिन बीबी ज़हरा ने मौला से कहा कि मेरा बेटा हसन रोज आके मुझे बताता है। मौला के दिल में ख्वाहिश है। मेरा मौला उस दिन जल्दी आ गया, दूसरे हुजरे में आके बैठ गए। मौला हसन उसी अंदाज से घर आए, आके बीबी ज़हरा से जब बात करने लगे तो जबान में लुकनत पैदा हो गई, रुकने लगे। रुक के इधर उधर देख के कहा ऐसे महसूस हो रहा जैसा मेरा बाबा मुझे देख रहा। ये इमाम है, लेकिन पूरे वाक़े का नतीजा क्या है, कंक्लूजन क्या है? पूरे वाक़े का कंक्लूजन ये कि जब बच्चा बाहर गया और जब बच्चा घर में अंदर आए तो किसकी जिम्मेदारी है? या माँ की जिम्मेदारी है कि पूछे कि बेटा व्हाट हैपेंड आउटसाइड, क्या हुआ, किससे मुलाकात हुई, क्या इंसिडेंट हुआ। आज हमारी माओं को, आज हमारी कौम की औरतों को जिनकी गोदों में बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, वी डोंट हैव टाइम टू आस्क देम। सबसे बड़ा इश्यू यही है कि माँ पूछती है बच्चे को कि बेटा व्हाट यू हैव डन इन स्कूल, किससे मुलाकात हुई। ये जब तक तुम अपने आप को चेक नहीं करोगे, यू विल हैव बिग प्रॉब्लम, यू विल हैव बिग प्रॉब्लम। आज यकीन करो मेरी बात, पूरी दुनिया में मुझे एक ही बात पे रिक्वेस्ट की जाती, जहां मैं जाता हूं या व्हाट्सएप मैसेजेस
या जब पर्सनली जाता हूँ यूरोप अमेरिका में, कहीं भी, इंडिया पाकिस्तान, क्या बोलते मौलाना ये बताओ कि बच्चों को की तरबियत के लिए क्या करें। पहला कंडीशन, पहली चीज औलाद की तरबियत के लिए रिस्क हलाल खिलाओ। समझ में नहीं आई बात है? रिस्क हलाल खिलाओ। अगर बच्चों के पेट देके, पहला कंडीशन औलाद को नेक और साले बनाने का रिस्क हलाल। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश में किसी के पास, सबके पास रिस्क हराम है। आई डोंट मीन दैट, गलत नहीं समझना। मेरा मतलब ये नहीं है कि हराम है किसी के पास। मेरा मतलब ये है कि रिस्क हलाल का क्या मतलब, हर आदमी हलाल कमा रहा, और अगर वो हक के ज़हरा नहीं देगा तो हराम हो जाएगा। मैं खुम्स पे तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा कि जो पहला कंडीशन है बच्चे को नेक और साले बनाने का, नेक बनाने का, उसको रिस्क हलाल खिलाना। अगर हलाल नहीं होगा पेट में, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला हुसैन बोल रहा। रोजे आशूर मौला हुसैन का पहला सरमन, फर्स्ट सरमन ऑन रोजे आशूर ऑफ इमाम हुसैन, जाके देखो। मौला हुसैन रोजे आशूर सुबह में नमाज के बाद सर पे अमामा रखा, अल्लाह के रसूल का, दोष पे अल्लाह के रसूल की आबाद आली, हाथ में वो स्टिक ली जो सरकार लेते थे, और पैरों में वो जूते पहने जो नाना पहनते थे। ऊंट को बुलाया, जुल्जनान ने लिया, ऊंट पे बैठे, इसलिए कि ऊंट जो है पीस के लिए ऐलान किया जाता। ऊंट सुलह की निशानी है, घोड़ा जंग की निशानी। मौला ऊंट पे आए, ऊंट पे आकर बाहर आए, उमर साहब को बुलाया, कहा कम हियर, जालिम आया, गुफ्तगू की। पूरे लश्कर को हुसैन ने इंट्रोड्यूस, अपने आप का अपना इंट्रोडक्शन दिया, पूरे लश्कर। ऊंट बड़ा, बड़ी सवारी है, सारा लश्कर देख रहा था। मौला हुसैन ने कहा कि मैं, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हुसैन इब्न अली, रसूल का नवासा हूं, एक लौता नवासा, अली और फातिमा का बेटा हूं। मैंने इस्लाम में कोई चेंज नहीं लाया। मैं जो हलाल मोहम्मदी है वो हलाल मोहम्मदी को रखा, जो हराम है मोहम्मदी उसको हराम किया। अपना टोटल इंट्रोडक्शन करा के मौला हुसैन खेमे में वापस आए, सिर्फ इंट्रोडक्शन करा। असहाब हुसैन ने पूछा कि मौला आपने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया, वेट नहीं किया। इमाम ने कहा मैंने अपना तारुफ कराया। फिर कहा मौला लेकिन आप इंतजार तो करते हो उनका? मौला हुसैन ने कहा नहीं, मैंने अपना तारुफ किया। तीसरी मर्तबा जब असहाब ने कहा तो मौला हुसैन का जुमला है, मौला हुसैन ने कहा कि मैं जानता हूं कौन है जमाने का इमाम है, उस वक्त का जमाने का इमाम, उस वक्त का हुज्जत खुदा। मेरे मौला हुसैन ने कहा मैंने हुज्जत को तमाम किया कि कल को ये ना बोले कि मैं नहीं जानता था कि हुसैन इब्न अली है। मैं जानता हूं कि मैंने हुज्जत को तमाम किया। उसके बाद इमाम का जुमला वो क़यामत तक के लिए, आशूरे के लिए नहीं था। फिर मौला हुसैन कहते हैं मैं इसीलिए उनके जवाब का इंतजार नहीं किया, आई डिडंट वेट फॉर देम, इसलिए कि मैं जानता हूं इनके पेटों में हराम भरा हुआ। वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम मौला हुसैन। अगर पेटों में हराम होगा तो इमाम की बात भी समझ में नहीं आएगी। तो पहला स्टेप जो है माए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप सरवाइव करें, एग्जिस्ट करें, दोस्तों आज तुम्हारे हाथ और पैर में ताकत है, आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा स्टेटस है, तुम समझ रहे बात? कल तुम मरोगे, कभी तो मरोगे, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल मरोगे। वो बेटा नहीं आएगा तुम्हारी लहद के ऊपर। अगर बेटा नहीं आएगा तो उस वक्त यू विल क्राई कि अरे काश मेरा बेटा आके मुझे एक सलवात पढ़ के फातिहा देता। उससे बेहतर ये कि औलाद को इतना नेक और साले बना दो, औलाद को दीनदार। खुद माँ हिजाब करेगी तो बेटी हिजाब करेगी, माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटा नमाज पढ़ेगा, बाप नमाज पढ़ेगा तो औलाद नमाज पढ़ेगी। ये सबसे ज्यादा तरबियत औलाद सिर्फ नमाज रोजा नहीं है। तरबियत औलाद वो सारा एटमॉस्फेयर है घर का, हलाल और हराम का बताना, ये इतना इंपॉर्टेंट। मेरे कई क्लिप्स है जमाने के इमाम की। बीबी नरजिस खातून ने सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारे इमाम की वालदा, लाखों सलाम बीबी को, मेरे इमाम को और बीबी को। जब बीबी आएंगे पूरा वाकया छोड़ दिया मैंने। बीबी जब रोम से सामेरा आई
10वें इमाम के पास। अल्लाह हमको सामरे की ज़ियारत नसीब करे। 10वें इमाम के घर में आई, 53 या 54 हिजरी है, 253 या 254 हिजरी आई। 10वें इमाम ने 10,000 तुमान की दीनार की एक थैली दी और कहा, नरजिस मैंने तुमको अल्लाह के नाम पे आजाद कर दी, चली जाओ, या अगर यहां रहोगी तो मैं तुमको वो बशारत दूंगा कि अगर मेरे बेटे से जो तुमने ख्वाब में देखा वो अगर निकाह हुआ, शादी हुई, तो अल्लाह तुम्हारे बतन से वो बेटा अता करेगा जो जमीन और आसमान का मालिक होगा, जो अदल को नाफिज करेगा, जो हुज्जत खुदा होगा। बीवी ख्वाब में देख चुकी थी। बीवी ने कहा, पैसों की थैली को बाजू रखा, कहा मौला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो बशारत चाहिए जो मैंने ख्वाब में। ये गुफ्तगू गौर से सुने, गुफ्तगू हो रही थी। बीबी हकीमा खातून रूम में एंटर हुई। बीबी हकीमा खातून कौन है? 9वें इमाम की बेटी है, 10वें इमाम की सगी बहन, रियल ओन सिस्टर, 11वें इमाम की फूफी है और जमाने के इमाम की ग्रैंड मदर है। वो आई, पूछा ये कौन है? तो कहा ये नरजिस, हसन अस्करी से इनकी शादी होने वाली है। ये समझ गई कि ये इनकी सास है। बीबी नरजिस उठी, बीबी हकीमा ने इनको सीने से लगाया, दोनों बीबियां बैठ गई। जब बैठ गई, बैठने के बाद बीबी नरजिस को और बीबी हकीमा को 10वें इमाम ने जो मैसेज दिया वो मैसेज दे रहा। 10वें इमाम ने, अब कंफर्म हो गई शादी कि अब शादी होना है। 10वें इमाम ने अपनी सगी बहन बीबी हकीमा खातून से कहा कि हकीमा नरजिस को अंदर लेडीज सेक्शन में लेके जाओ, मैं 8 दिन के बाद शादी करूंगा। निकाह जो होगा जाहिरी तौर पे वो आफ्टर 8 डेज होगा। तुम नरजिस को अंदर लेडीज सेक्शन में लेके जाओ और लेके जाके अपने साथ रखकर हलाल और हराम बताओ, हलाल और हराम बताओ, इस्लाम बताओ, फिर मैं निकाह करूंगा। मेरा सवाल ये है कि क्या जरूरत है बीबी नरजिस खातून को इस्लाम बताने की शादी से पहले? क्या जरूरत है बीबी नरजिस खातून को हलाल और हराम बताने की? आपको सवाल होगा कि हलाल और हराम नहीं मालूम था। अरे बाबा, ये शी वाज क्रिश्चियन, तो वो सीजर्स की ग्रैंड डॉटर है, वो वहां से आई थी, तो इस्लाम कबूल यहाँ पे किया। तो ये तो पूरा एक इंतजाम है। वो जो वाक़या है पूरा में वाक़या मैंने छोड़ दिया, सब जानते हैं, तारीख में वाक़या मौजूद है। तो बीबी को 10वें इमाम ने पहले शादी से पहले नरजिस खातून को हकीमा खातून के हवाले करके बताया कि इस्लाम बताओ, दीन बताओ, हलाल हराम बताओ, फिर निकाह होगा। मेरा सवाल ये है, तरबियत औलाद की ढाका की ये मेरी मजलिस की अल हुज्जत फाउंडेशन के जरिए जो मैं पढ़ा, बस मैं आखिरी स्टेज पे आया। मेरा सवाल ये कि क्या जरूरत है बीबी नरजिस खातून को इस्लाम बताने की, हलाल हराम बताने की? इसलिए कि एक गौर से सुनना, एक इमाम की वाइफ बनने वाली है 11वें इमाम की, और एक इमाम की माँ बनने वाली है। इन्हें जमाने के इमाम की माँ बनने वाली है और 11वें इमाम की वाइफ बनने वाली है। 8 दिन के बाद 11वें इमाम की बीवी बन जाएगी। अरे शादी होगी, 11वें इमाम के पास जाएंगी, इमाम खुद बता देगा। तो इमाम ने 10वें इमाम ने बीबी नरजिस खातून को नहीं बताया, बल्कि अपनी कौम की सारी कनीजों को मैसेज दिया कि तुम जब लड़की को रुखसत कर रहे, जब लड़की की शादी कर रहे, तो उससे पहले अपनी लड़की को बताओ कि व्हाट इज हराम, व्हाट इज हलाल। अगर हलाल हराम बताकर, इस्लाम बताकर नहीं रुखसत करोगे, उससे जो औलाद होगी वो प्रॉब्लम होगा। आप सोचो, 2 इमामों से रिश्ते के बाद भी 10वें इमाम ने यह पैगाम दे दिया कि अपनी औलाद को अगर प्रोटेक्ट करना है, औलाद की हिफाजत करना है, तो तुमको फर्ज है, तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम लड़की को जब रुखसत करो शादी के लिए, तो तुम उसको हलाल हराम बता के रुखसत करो, इस्लाम बता के रुखसत करो। अगर तुम इस्लाम बता के रुखसत करोगे तो तुम्हारी उसकी जो उससे जो नस्ल चलेगी वो नस्ल दीनदार होगी, नस्ल पाकीज़ा होगी। दोस्तों, एक बेटा या एक बेटी नस्लों को बख्शवा देंगे। और अगर ये आप ये गफलत में मत रहो बांग्लादेश में, ये मैं पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल मैसेज दे रहा। बस आखिरी हिस्सा मेरा टाइम हो गया, 30 मिनट्स के करीब हो गए। मैं पूरी दुनिया को ये ग्लोबल मैसेज दे रहा। क्या मैसेज दे रहा?
کہ یہ مت سمجھو کہ تم مسلمان ہو، تم دیندار ہو، تمہارے گھر میں اسلام ہے تو تمہاری اولاد بھی نیک ہوگی۔ جب نوح جیسے نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو ہمارا یہ اولاد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کیا نبی نوح نے کوئی کوتاہی کی تھی؟ نوح سے کہ کیا کوئی غلطی ہوئی تھی اولاد کی تربیت میں؟ نہیں۔ اولی العزم پیغمبر، کیا انہوں نے رزق حرام کھلایا تھا؟ نو۔ کئی ایشوز ہیں اس میں، گھر کا ماحول، رزق، پھر باہر کا ماحول۔ باہر کا ماحول، باہر کے ماحول کے لیے میں نے مولا حسن کا واقعہ پڑھا کہ اولاد کو کیسے پروٹیکٹ کرنا۔ گھر کے ماحول کے لیے بی بی زینب کا واقعہ پڑھا۔ پھر آپ کو ایگزامپل دے رہا نبی نوح کا۔ نبی نوح کا بیٹا جو گمراہ ہوا، ان کی ماں کی ایک وائف ان کی پرابلم کریٹر تھی، ایک وائف ان کی جو کافرہ ہو گئی تھی بعد میں، قرآن بول رہا۔ اور بیٹا کیسا ہوا؟ باہر کا ماحول اور ماں۔ تو یہ پورا کنکلوژن کیا ہے؟ پورا کنکلوژن یہ کہ ہم کو اولاد کی تربیت کے لیے we have to really spare some time۔ میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے پورا بنگلہ دیش میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا، کہ ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ 10 منٹ 15 منٹ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھو۔ دوستوں میں بات بولوں آپ کو، ویری کلیئر میسج، میرا آخری میسج ہے کہ پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تمہارا، یاد رکھو۔ یہ اور پیسہ تمہارا ملینز آف ڈالر بھی اگر تمہارے اکاؤنٹ میں ہے تو وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی خرچ ہو جائے گا۔ تمہارا بہترین انویسٹمنٹ تمہاری اولاد ہے۔ اگر اولاد دیندار ہو جائے تو تم خبر میں جانے کے بعد، گریب میں جانے کے بعد تم آرام سے سو سکتے۔ بیٹا تم کو روز کچھ نہ کچھ بھیجتا رہے گا۔ بس میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حج پہ گئے ہوئے تھے ہم لوگ، کویت سے حج پہ گئے تو وہاں جب گئے تو پہلی جو سپیچ میں نے دی، میں نے وہاں پہ یہ پورے گروپ کو کہا کہ سنو بھائی، ہم ایک لمیٹڈ پیسے لے کے آئے، 300 400 500 دینار لے کر آئے ہر آدمی۔ ہم کو 20-25 دن یہاں رہنا ہے، 20-25 ڈیز یہاں رہنا ہے۔ واجب تو ہم کو حج جو شروع ہوگا وہ تو ابھی 10-12-15 دن ہے۔ تو جب تک حج کمپلیٹ، غور سے سنو، جب تک حج کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ لوگ کوئی شاپنگ مت کرو، بہت لمیٹڈ خرچہ کرو، اس لیے کہ حج میں پیسوں کی ضرورت پڑتی، قربانی کے لیے، یہ اس کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب واجب میں آپ پہنچے تو آپ کے ساتھ پرابلم ہو جائے فنڈس کا۔ حج کے بعد 4 دن اور ٹھہرنے والے ہیں یہاں پہ، 4-5 دن، بہت اچھا ہے، اس وقت شاپنگ کر لینا، جو بھی شاپنگ کرنا ہے حج کے بعد کرو، حج سے پہلے نہیں کرو۔ سب نے کہا ٹھیک۔ پورے گروپ میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کا، سب لوگ پیدل جاتے تھے حرم کو، یہ ٹیکسی لے کے جاتا تھا، وہ بھی بڑی ٹیکسی۔ سب لوگ نارمل پانی پیتے تھے، یہ منرل واٹر پیتا تھا، اکیلے بھی نہیں پیتا، سب کو پلا رہا روم والا۔ سب لوگ نیچے کھانا کھاتے تھے، حملے کا گروپ کا، یہ اپنے پورے روم میٹس کو 4-5 کو لے کے ہوٹل جاتا تھا، ریسٹورینٹ جاتا تھا، ریسٹورینٹ جا کے وہاں کھانا کھاتا تھا۔ جو میں نے کہا تھا اس کے خلاف کیا اس نے۔ لوگوں نے آگے کہا مولانا اس کا ایسا لگ رہا ہے اس کا پیسہ بس 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا، اتنا پیسہ لوٹا رہا ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ بھائی آر یو اوکے، جو میں نے پہلے بولا تھا وہ غلط تھا؟ اس نے کہا نہیں مولانا بہت اچھی تقریر۔ میں نے کہا لیکن یار تم تو کام الٹا ہی کر رہے، تمہارے پاس جو بھی پیسہ ہوگا 500-1000 دینا، وہ تو 8 دن میں خرچ ہو جائے گا جس انداز سے تم خرچ کر رہے۔ ان کو بھی کھانا کھلا رہے ہوں، بری بات نہیں ہے کھانا کھلانا، لیکن حج پہ آئے ہوئے سب مسافر ہیں، دیکھ سمجھ کے خرچ کر، ایسا نہیں کہ تم کو بعد میں پرابلم آ جائے۔ تو 4-5 دن میں تب تمہارا پورا پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ Then what are you going to do؟ پھر تم حج پہ جاؤ گے، بکرا خریدنا ہے، دوسرے اگر کوئی خدا نہ خاصا کام ہو جائے تو what are you going to do؟ پورا پیسہ تو خرچ ہو جائے گا۔ He said مولانا میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ He said کہ I've got 2 sons، میرے 2 بیٹے، ایک ریاض میں ہے، ایک جدہ میں ہے، ایک جدہ میں ہے، ایک ریاض میں۔ جیسے ہی میں مکہ مدینہ منورہ پہنچا اور مکہ پہنچا، میرے دونوں بیٹوں کا فون آ گیا، کہا بابا گھبراؤ مت، بابا گھبراؤ مت، ہم ہر ہفتہ ہر 4 دن کو الرجائی ایکسچینج تھی، الرجائی کے ذریعے ہم جدہ سے آپ کو ہر ہفتہ 1000 ریال بھیجیں گے۔
उसने कहा बा हम आपको हर वीकेंड पे 1000 रियाल, आप आराम से रहो, आराम से खर्च करो, खाओ पियो, मजे करो, हर हफ्ते आपको मैं पैसे भेज रहा हूं, 1000 2000 3000 रियाल में, आप पहली दफा आए वो भी हज पे। मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज मिल गया, गौर से सुनना, कहा हर हफ्ते भेजेंगे आप। तो याद रखो, औलाद अगर दीनदार होगी, औलाद को इस्लाम मालूम होगा, औलाद को माँ बाप की रिस्पेक्ट मालूम होगी, एक एक मजलिस है मेरा पूरा एक एक जुमला, अगर औलाद दीनदार होगी, औलाद इस्लाम को फॉलो करेगी, औलाद माँ बाप की रेस्पेक्ट करेगी, तो फिर माँ और बाप को मरने के बाद फिक्र नहीं है, वो नीचे रहेंगे, हर शब जुमा को औलाद कुछ ना कुछ तोहफे भेजते रहेगी, तुम्हारे दर्जात बुलंद होते रहेगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर औलाद दीनदार है, तो दीनदार कब होती, जब बचपने से तुम औलाद को रेस करते। व्हेन यू रेज योर किड्स, चेक योर सेल्फ कि तुम उनको खिला रहे क्या, चेक योर सेल्फ कि मैं 5 मिनट माँ बच्चे से बात कर रही, माँ को चाहिए कि सबसे पहले चीज रिस्क हलाल, उसके बाद फिर ये चेक करो वो वाजिबात पे अमल कर रहा, नमाज पढ़ रहा, रोजा रख रहा, अगर वाजिब हो जाए, वाजिब होने से पहले करवाओ, इसका सवाब ज्यादा है। उसके बाद आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, ये भी चेक करो कि तुम्हारा बेटा टेलीफोन पे देख रहा क्या, तुम्हारे बेटे का कल्चर क्या है। उसके बाद ये चेक करो कि बच्चों के दोस्त कौन कौन है, किस फ्रेंड सर्कल में ये मूव होता है, सीक्रेट तरीके से भी जाओ, खामोशी से भी जाओ, स्कूल जाके भी चेक करो क्या ये स्कूल से सीधा डायरेक्ट घर को आता है या कहीं दोस्तों में जाता है, और जाता है तो किन दोस्तों में जाता है, और अगर को एजुकेशन है तो क्या ये लड़कियों से बात करता है, अगर बात करता है तो किन लड़कियों से बात करता है। आपको ये सारी चीजें चेक करना। बच्चा पैदा करना बड़ी बात है नहीं, वो तो अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने हमको दिया है। बेहतरीन अमाल में ये कि अगर तुम्हारा बेटा दीनदार हो जाए, बेटी दीनदार हो जाए, तो तुम यकीन करो तुम्हारी दुनिया भी बन गई, तुम्हारी आखिरत भी बन गई। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से बयान फरमाया। तो हमारे कमेंट सेक्शन पे माशाल्लाह अभी हमारे व्यू 56 हो रहे हैं, बहुत तमाम मोमिनीन दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो कुछ सवालात कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं और कुछ लिंक्स पे आ रहे हैं, तो मैं कुछ चंद सवालात आपके सामने पेश करूंगा। आप अगर बिस्मिल्लाह। पहला क्वेश्चन हमारी बहन ने किया है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ फादर टुवर्ड्स हिज चाइल्ड। फादर की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि वो हलाल रिस्क प्रोवाइड करे वाइफ को। औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि गो एंड अर्न, गो एंड वर्क, नो। अगर वो करती है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन बाप की जिम्मेदारी ये होती कि और लड़की शादी करके लाए तो हर चीज की जिम्मेदारी शौहर की है। घर को प्रोवाइड करना, कपड़े को प्रोवाइड करना, खाने को प्रोवाइड करना, मेडिकल प्रोवाइड करना, अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा टेक केयर करना। इवन इफ द वाइफ आस्क कि आई एम फीडिंग माई चाइल्ड, आई नीड, मिसाल के तौर पर $200 पर मंथ, मैं किसी को माहौल खराब करके नहीं जाना चाहता, मैं बोल रहा, अगर इफ शी डिमांड्स, मिसाल दे रहा $200, तो यू हैव टू पे, बिकॉज दोनों का हिस्सा है। ये सारी जिम्मेदारी बाप की, और माँ की जिम्मेदारी बच्चों को तरबियत देना है। माशाल्लाह, बहुत खूब। एक हमारी दूसरी बहन है, उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया है, उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए एक क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन है कि वन ऑफ माय पेरेंट्स वोंट लेट मी गो टू द यूनिवर्सिटी बिकॉज दे आर सेइंग को एजुकेशन इज हराम, व्हाट शुड आई डू। देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं करता, इसलिए कि को एजुकेशन में अगर वो हिजाब में जाती है, प्लीज हिजाब में जाती है, शी कैन गो एंड शी कैन स्टडी। इफ शी गोज इन इस्लामिक किड, कंप्लीट इस्लामिक किड, वो लड़कों के साथ बैठ के पढ़ सकती, बट वो अगर हिजाब नहीं करती है तो फिर नामहरम के साथ वो नहीं बन सकती। पहला कंडीशन हिजाब है, पहला कंडीशन इस्लाम। खाली हिजाब नहीं है, हिजाब सिर्फ सर पे स्कार्फ बांधने का नाम नहीं है। अगर तुम्हारा शर्ट टाइट हो या जीन्स टाइट हो, टी शर्ट, जीन्स और टी शर्ट में अगर तुम सर पे स्कार्फ बांधे तो वो हिजाब नहीं है। हिजाब के माने में एक ही उसमें बोल देता कि बॉडी को एक्सपोज नहीं करना। अगर बॉडी एक्सपोज हो रही है तो फिर वो
हिजाब नहीं। अगर लूज ड्रेस में है तो डजंट मैटर, शी कैन गो एंड शी कैन स्टडी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले सवाल पे जाते हैं कि एनी दुआ फॉर नेक औलाद। बहुत अच्छी बात है। मुझे हैरत ये हुई कि अभी तक कोई सवाल दुआ के बारे में नहीं हुआ, वरना मैं कहीं जाऊं तो सबसे पहले दुआ के सवाल आते हैं। जी जी जी। माँ को बोलो जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती, ये सबके लिए बोलो, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती, 4 मंथ्स की जब प्रेगनेंसी होती, तो शी हैज टू रिसाइट ज़ियारत आशूरा बाआवाज़ बुलंद ज़ियारत आशूरा, और सामने ग्लास में पानी रखना, पानी रख के ज़ियारत आशूरा पढ़ के पानी में फूकना और पानी भी पी लेना। लेकिन पहला वही कंडीशन के हराम रिस्क माँ के पेट में नहीं जाना, म्यूजिक नहीं सुने, गान में म्यूजिक की आवाज ना जाए, इंडियन सॉन्ग्स मत देखो, बांग्लादेशी सॉन्ग भी नहीं देखना, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, और इंडियन सॉन्ग है ये हराम चीजों से बचना। वन शी गेट्स द प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती, शी हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, इसलिए कि अब उसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी औलाद की जिम्मेदारी है जो उसको कैरी कर रही, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने उसके हवाले किया। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ज़ियारत आशूरा रोज रिसाइट करे या डेली? शी हैज टू रिसाइट डेली ज़ियारत आशूरा बाबा से बुलंद, जो 100 मरतबा पढ़ने की लानत है और सलाम है, वो एक दफा 5 दफा पढ़ सकती। जोर से पढ़ना, इसलिए कि जब माँ पढ़ती है तो बेटा सुनता है, औलाद सुनेगी। वो पढ़ो even before she goes to deliver, if she recites ज़ियारत आशूरा और गए तो नॉर्मल डिलीवरी होती, हेल्थी बेबी होती, नॉर्मल डिलीवरी एंड हेल्थी बेबी होती, कोई खुदा ना खस्ता कोई ऐब नहीं होता उसमें। माशाल्लाह। अब अगले सवाल पे जाते हैं कि in which age we should stop saying our kids about the do's and don'ts? नहीं, एक दफा फिर बोलो। In which age we should stop saying our kids about the do's and don'ts? What? Like what they should do and what they should not do. In which age we should stop? You should start saying after 7 years. After 7 years. इसलिए कि लड़की को 9 साल में वाजिबात पे अमल करना है, तो 2 साल पहले से उसको प्रिपेयर करो कि बेटा when you become 9 you have to say नमाज and हिजाब। 8 साल से बच्ची के सर पे हिजाब बांधो, ऐसा नहीं कि 9th ईयर में आने के बाद ही बांधेंगे वो माँ। अच्छा, इसका पहला कंडीशन ये है कि माँ खुद हिजाब करे तो बेटी को हिजाब के लिए बोल सकते। अगर माँ ही हिजाब नहीं करी तो बेटी को, पहली चीज लड़की को हिजाब और हलाल और हराम बताना। मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया हलाल और हराम का, ये हलाल और हराम बताना और वाजिबात पे अमल कराना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डज इस्लाम सेज अबाउट बीटिंग चिल्ड्रन? बीटिंग चिल्ड्रन इस्लाम परमिट नहीं करता, डजंट अलाउ यू टू बीट द चिल्ड्रन। अगर आप मोहब्बत के साथ, अच्छा एक चीज और याद रखो, कभी चेहरे पे नहीं मारना, कभी अपनी औलाद के फेस पे कभी नहीं मारना, ऐसा तमाचा जिसको ये कभी नहीं करना, हराम है। और अगर निशान पड़ जाए, इंप्रेशन आ जाए बॉडी के किसी हिस्से में, तुम लकड़ी लेके मार रहे, हराम है, नहीं करना। बच्चे को आंखों से डराओ, बच्चों को ऐसा रेस करो कि वो तुम्हारे इशारों को समझे। लकड़ी से मारने से बच्चा सही नहीं होता, वो हराम है, नहीं मार सकते। जी, एक टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन है मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तकलीद की जानिब से, अगर हम एक मर्जा की तकलीद करें और जिसकी तकलीद नहीं करे तो उनको भला बुरा करने की हक क्या है हमें? नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमको बिल्कुल नहीं। मिसाल के तौर पे मैं रहबर मौसम की तकलीद करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आगा हुसैन शिस्तानी साहब की तकलीद करता हूँ, तो क्या मैं दूसरे मर्जा को? हर मर्जा हमारे सर के ऊपर, हर आलिम की इज्जत करना हम पर वाजिब। ये आप किसी आलिम को, आप नॉर्मल लोगों को बुरा भला नहीं बोल सकते, तो आप मर्जाए वक्त को कैसा बुरा बोलते हैं? जी, एक और सवाल है मौलाना साहब, वालिदैन की खिदमत करना औलाद पर वाजिब है,
لیکن بیٹیوں کو خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ وہ شادی کر کے چلے جاتی ہیں. تو ہم یہ مطلب لڑکیاں یہ ثواب سے بھی محروم ہے, تو لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے, مطلب what are the responsibilities after the marriage؟ ماں باپ کے حق میں اگر شادی کر کے چلے جاتے تو ماں باپ کے حق میں دعا کرنا وہ ان کے لیے بہترین خدمت ہے. ماں باپ کے لیے روز سلامتی کی نماز پڑھو, ماں باپ کے لیے روز صدقہ دو, اور اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کے حق میں دعا کرو, اور اگر ماں باپ مر گئے تو روزانہ ان کے لیے یاسین, سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھو, حقوق والدین, مغفرت والدین کی نماز پڑھو, یہ کافی ہے ان کے لیے. جی, اب میرے جانب سے مولانا ایک سوال, میں تمام بنگلہ دیشی, تمام دنیا بھر کے مومن مومنات کے جانب سے میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو دنیا بھر میں وبا چل رہا ہے, یہ کورونا وائرس کا جو پرابلم ہے, تو ہمارے لیے کون سی اعمال ہے, ہم روز کون سی اعمال کریں کہ ہم اس چیز سے محفوظ رکھے, اس چیز سے محفوظ رہے, اس وبا سے کوسوں دور رہے؟ بہت اچھا سوال کیا, یہ کنٹینیوس سوال ہو رہا ہے سر. زیارت عاشورہ پڑھنا اور بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرنا, ایوری ڈے زیارت عاشورہ پڑھو. اسی طرح کی ایک ایسی وبا سامرے میں آئی تھی, ہمارے تیسرے نائب کا زمانہ تھا, حسین ابن رو کا زمانہ تھا یا محمد ابن عثمان کا زمانہ تھا, دوسرے یا تیسرے نائب کا, اور لوگ مسلسل مر رہے تھے. اس وقت جب امام سے رجوع ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ جب امام کی والدہ موجود ہے یہاں پہ سامرے میں, اور عاشورہ پڑھو 3 مرتبہ کا, اور بیوی کو ہدیہ کرو. تو اس کے بعد پورا سامرہ پڑھنے لگا, تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وبا آئی, دوسروں تک پہنچی, ان تک نہیں پہنچی. اور یہ ایسا آزمایا ہوا عمل ہے. سب سے بڑا بنگلہ دیش میں جو مجھے سن رہا کہ عاشورہ پڑھو اور بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو, 14 معصومین کو ہدیہ کرو, اور مرحومین کی طرف سے اور بیماروں کی طرف سے, تو اللہ تم کو ان کے صدقے میں تم کو صحت دیتا. اور دوسری چیز صدقہ امام کی سلامتی کا دیتا. 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز پڑھنا ایوری ڈے, فجر کی نماز کی طرح. یہ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا کہ 2 رکعت تم نے اگر امام کی سلامتی کی نماز پڑھی تو امام تمہاری سلامتی کی دعا کرتا, اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کرتے تو وہ بھی کرتا. تو زمانے کا امام اگر آپ کی سلامتی کی دعا کرے گا تو کیا کورونا وائرس آپ کو پرابلم کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات بول رہا کہ آپ کو پورے وہ کنڈیشنز کو اپلائی کرنا ہے. جو گورنمنٹ کی رولنگ ہے اس کی ریسپیکٹ کرو, جو ڈاکٹر بولتا ہے اس پہ ریسپیکٹ کرو. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کو کھول کے بازار میں مارکیٹ میں نکل جاؤ, نو, آئی ڈونٹ مین دیٹ. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ یہ اعمال کرو, امام تمہاری مدد کرے گا, جو رولز اپلائی ہو رہے ہیں اس کو فالو کرو. جی, دامن وقت میں بالکل ختم ہو گیا دامن وقت میرا. بس چند منٹ اور قبلہ, بس 2-4 منٹ بس, پھر ختم کرتے ہیں. 2 کوشچن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. کین یو ٹیل می اینی effective dua for risk because due to COVID in the world job issues, please. اس کے لیے بہترین نمازوں میں نماز شب ہے. 3 رکعت پڑھو, لیکن پڑھو جو نماز شب پڑھتا وہ رزق کے پرابلم میں نہیں آتا. 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر پڑھو, اللہ تمہارے رزق کو کھولتا. نماز شب پڑھنے کے بعد زیارت عاشورہ پڑھو, اور اس کے بعد زیارت جامعہ. آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے, بٹ دس پیکیج کین چینج یور ڈیسٹینی, اٹ کین چینج یور لائف, کمپلیٹلی لائف چینج ہو جاتی. اور 100 مرتبہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو اور 14 معصومین کو ہدیہ کرنا, اس سے بھی رزق ہوتا. جی, بس ایک آخری سوال. کسی نے ریکویسٹ کیا ہے کامنٹ سیکشن پہ کہ what to do to keep اولاد on راہ راز. میں ابھی پوری 30-35 منٹ کی تقریر میں یہ بولا, رزق حلال کھلاؤ بابا, رزق حلال کھلاؤ, تم اسلام پہ عمل کرو, دعا کرو, زیارت امام حسین کا پابند بنا لو. زیارت امام حسین کے پابند رہو گے تو انشاءاللہ تمہاری اولاد نیک اور صالح نکلے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو الحجت فاؤنڈیشن آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے آج کا پروگرام تربیت اولاد کو کامیاب
वो कामरान किया। खुदा आपको सेहत और सलामती और तूल उम्र अता फरमाए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सारे बांग्लादेश के मोमिनीन को सलाम और अल हुज्जत की पूरी टीम को सलाम। मौला सबको आपको सलामत रखे, दुआ में याद रखना। थैंक यू जी, मौला आपको भी सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सामाईन कराम, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को देखा। दामन वक्त में गुंजाइश थोड़ा सा कम था, इसलिए हमारे मौलाना साहब थोड़ा सा वक्त कम दे पाए। तो जिन्होंने भी हमारा प्रोग्राम देखा, मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग ने वक्त निकाल के हमारा प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन अंदाज में और कुछ ऐसे ही इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। कल हमारा एक लाइव कुरान तिलावत प्रोग्राम जो कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, इंशाल्लाह आगे भी किबला आएंगे, मौलाना आएंगे, इंशाल्लाह हम आगे भी सवाल जवाब करते रहेंगे, लाइव डिस्कशन करते रहेंगे। जिसका क्वेश्चन, जितने भी मोमिनीन हैं जिनका क्वेश्चन हम आज नहीं कर पाए वक्त के लिए, मैं तहे दिल से उनका माफ़ी चाहता हूँ, माजरत। इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह फ्यूचर पे मैं इंशाल्लाह बहुत हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के जो कमेंट्स है हम लोग उलमा तक पहुंचाएं, मौलाना तक पहुंचाएं और उसके सवालात, आपके जवाब जो है सवालात के हम लोग क्लियर करें। तो बस ये प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से शुक्रगुजार हूँ सारे मोमिनीन के जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा। हमारा पेज है अल हुज्जत फाउंडेशन, पेज को लाइक कीजिए ताकि आप लोग ऐसे ही कंटेंट और भी देख सके और भी प्रोग्राम हम फ्यूचर में कर सके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल। इंशाल्लाह हमारे 8 बजे बांग्लादेश टाइम पे लाइव कुरान तिलावत कंपटीशन बच्चों का जो शुरू होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि कल हमारे साथ आप लोग शिरकत करें और बच्चों का हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया अल हुज्जत फाउंडेशन के जानिब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला सलामत रखे आप सब।